Hello, welcome you all again. Let's we have a discussion again on pulse time modulation. In the previous lectures, we have already talked about the pulse amplitude modulation. In the series of the pulse modulation, we have a discussion on pulse amplitude modulation in which the amplitude of pulse varies with respect to the message signal. Whatever the message signal is there, with respect to that, the modulation is being taken up. In the second case, we are taking the care of the pulse time modulation. This time, the pulse width and pulse position. The pulse having the two another attribute is the position as well as the width. So in this case, when the width and position of the pulse varies in accordance to the message signal, we called it as a pulse time modulation. So in the pulse time modulation, that can be divided into the two category, which can be written as PWM, pulse width modulation, pulse position modulation. So what are basically the ideas and the method how which we can generate it? So the method of generation of the PTM, pulse time modulation, can be indirect method and the direct method. So indirect method tells us the first PAM signals are generated. It's a very simple process. आपको कुछ नहीं करना है. The first process tells you how you can generate the PAM. प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि किस तरीके से पैम सिग्नल जनरेट किए जाते हैं. तो जिस तरीके से पैम सिग्नल्स का जनरेशन किया जाता है उसी तरीके से आप पैम जनरेट करिए. और जब आपके पैम जनरेट हो जाते हैं, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर जनरेट हो जाते हैं, देन यू गो फॉर द सिंक्रोनाइज इट विद जनरेटिंग ड्यूरिंग ईच पल्स इंटरवल. These two signals are added and sum is applied to the comparator whose reference level is suitably chosen. The second crossing of the comparator level used for PPM. So it's a very simple process. In indirect method, nothing you are doing. You are choosing a PAM signal. Two different kind of a PAM signal. They are synchronized. वो synchronized होते हैं and they are different by means of their different values of amplitude. It means the two PAM signal. If suppose I have this first PAM signal and the second PAM signal is here, and if suppose I'm synchronizing them and adding them, so this can be a total width of the signal. Simply, if suppose I'm shifting like that, the position can be shifted by this, by adding and summing. So the two different signal can be added and the two signal can be easily sum up at a point that can change the width as well as the position of. So this is called as an indirect method. ये आपका simple indirect method कहलाता है और indirect method से आप इसको simplify कर सकते हैं. सेकेंड मेथड जो आपका कहलाता है वो कहलाता है डायरेक्ट मेथड. पीटीएम वेवफॉर्म्स आर जनरेटेड विदाउट यूजिंग पैम वेवफॉर्म. इसमें आपको पैम जनरेट करने की जरूरत नहीं है. आप पैम मत जनरेट करिए, डायरेक्टली आप जनरेट कर सकते हैं. सो लेट्स वी हैव अ डिस्कशन ऑन बोथ द कैटेगरीज पीडब्ल्यू एंड पीपीएम. द पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन इज द मॉड्यूलेशन ऑफ सिग्नल बाय वेरिंग द विड्थ ऑफ द पल्स. द एम्पलीट्यूड पोजीशन ऑफ द पल्स आर कांस्टेंट इन मॉड्यूलेशन. इसमें क्या करते हैं, पल्स की विड्थ को वेरी कराते हैं और उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट ही रहता है. एम्पलीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चेंज नहीं होता आपका. अगर हम बात करते हैं फिगर की, तो दिस फिगर, अब पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि हाउ वी कैन डू दैट, व्हाट इज द बेसिक प्रोसेस. सो इफ यू सी अ सिंपल डायग्राम इज हियर इन विच अ कंपैरेटर इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट द पीडब्ल्यूएम इनपुट. हाउ इट कैन बी डन, सी हियर. सपोज दैट वी हैव दिस x3 as a signal and sawtooth generator is here. We have the comparator and one monostable multivibrator, and this is a PPM, PDM and PWM. It means the pulse deviation, pulse width, the same thing is here. So दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट. ये सिंपल ब्लॉक डायग्राम आपको हेल्प करता है ये समझने में कि किस तरीके से आप अपने सिग्नल से पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन और पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन दोनों जनरेट कर सकते हैं. तो देखिए, सबसे पहले आपको एक एक्सटी, एक मैसेज सिग्नल है. ये मैसेज सिग्नल आपने कंपैरेटर के प्लस टर्मिनल पर दिया. कंपैरेटर के सेकंड जो टर्मिनल है उस पर आपने सॉटूथ जनरेटर दिया. कंपैरेटर के बारे में आपको एक चीज़ खास ध्यान रखनी पड़ेगी. कंपैरेटर अपने आप में वो डिवाइस होती है जो दो सिग्नल से बीच का कंपैरिजन करता है और कंपैरिजन करने के बाद अगर उनके बीच में डिफरेंस है तो दैट शोज सम आउटपुट. तब ये आउटपुट डिफरेंस आउटपुट शो करता है. तो दिस इज व्हाट बेसिकली द कंपैरेटर. इफ देयर इज नो डिफरेंस इट शोज 0. सो ये सॉटूथ वेव हो गई आपकी. दिस कैन बी जनरेटेड एज सॉटूथ. सॉटूथ वेव आपका यहाँ जनरेटेड है और इस सॉटूथ पर आपने एक्सट्री सिग्नल दिया हुआ है. इफ यू सी हियर एट डिस्टिंक्ट पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पर ये पॉइंट्स इंडिकेट करते हैं कि वेयर इट हैज़ बीन ट्रेस्ड आउट, कहाँ पे इनको ट्रेस किया गया है, कंपेयर किया गया है. सो ऑन द कंपैरिजन पॉइंट इट इज़ बीइंग कंपैरिजन बीइंग स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट. इस पॉइंट से कंपैरिजन स्टार्ट हुआ. कंपैरिजन में जब तक ये डिफरेंस इनके बीच में रहा तब तक सिग्नल मिला और ये सिग्नल आपको एक पल्स की फॉर्म में मिला. सो इन दिस पीरियड ऑफ टाइम वेयर दीज टू आर नॉट इक्वल, ये आपका एक्चुअल मैसेज सिग्नल हो गया.
ये आपकी सॉटूथ वेव फॉर्म हो गई, जहां पर ये सॉटूथ वेव फॉर्म और ये सिग्नल इक्वल नहीं है, फॉर दैट ड्यूरेशन ऑफ पल्स इज बीइंग जनरेटेड। अब क्योंकि सॉटूथ वेव फॉर्म विल हैविंग अ वेरिएशन इन इट्स विड्थ, सॉटूथ वेव फॉर्म धीरे धीरे अपने एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। हियर यू हैव अ सिग्नल, अगेन दिस सिग्नल इज बीइंग कंपेयर्ड अनदर पॉइंट, सेकंड पॉइंट पर व्हेन इट इज बीइंग कंपेयर्ड, फिर से कंपेयर किया जाएगा, इट इज शोइंग द जीरो पल्स। नेक्स्ट टाइम जब इस सिग्नल को कंपेयर किया जाएगा, अगेन इट कम्स टू द सिमिलरिटी, जब ये कॉमन पॉइंट पर आ जाएगा, यहाँ से फिर एक पल्स स्टार्ट होगी और ये पल्स तब तक रहेगी जब तक कि इनके बीच में डिफरेंस रहेगा, जब तक ये डिफरेंस है तब तक पल्स एग्जिस्ट करेगी, दैट विल बी आउटपुट ऑफ दिस कंपैरेटर। सिंपल। देन दैट कंपैरेटर शोज अगेन द लो सिग्नल, अगले सिमिलर पॉइंट से नेक्स्ट सिमिलर पॉइंट टेस्टिंग तक ये आपका जीरो सिग्नल इंडिकेट करेगा। सिमिलरली फिर से पल्स जब आपकी सेम इक्वल एम्पलीट्यूड पे जाएगी, इट स्टार्ट्स एंड दिस वन। तो जहां जहां ये सिग्नल इस सॉटूथ प्री डिफाइंड सॉटूथ वेवफॉर्म से अलग अलग वेरी करेगा, कहीं कंपैरिजन में ज़्यादा है, कहीं कंपैरिजन में कम है, जैसे जैसे इस सिग्नल का वेरिएशन होगा लो एम्पलीट्यूड टू हाई एम्पलीट्यूड, सॉटूथ का एम्पलीट्यूड फिक्स है, वेरिएशन फिक्स है, इस सिग्नल का वेरिएशन जैसे जैसे सॉटूथ के रेफरेंस में कम और ज़्यादा होगा, वैसे वैसे वहाँ पर आपको पल्स की विड्थ कम और ज़्यादा मिलेगी। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज अ डायरेक्ट मेथड। तो बाय दिस डायरेक्ट मेथड यू कैन इजीली जनरेट PWM, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। अब इसी प्रोसेस के थ्रू आप पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन भी जनरेट कर सकते हैं। क्या तरीका है उसके लिए? इसके लिए आपको एक मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले फंक्शनिंग समझनी पड़ेगी कि मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है। मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर अपने आप में एक सिंपल से 555 टाइमर से बनाई गई एक डिवाइस है, जिस डिवाइस में अगर आपने एक पल्स दी है, व्हेन यू आर मेकिंग इट ऑन, जब आप इसको ऑन करते हैं तो फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इट शोज अ कंटिन्यूस टाइम ऑफ पल्स, एक कंटिन्यूस टाइम की पल्स देता है, देन इट अगेन गो टू इट्स ऑफ स्टेट। मतलब ये बिल्कुल उसी तरीके से हुआ जिस तरीके आपके घर में बजने वाली डोरबेल का बटन जैसे ही आप पुश करते हैं, थोड़ी देर के लिए आपकी बेल रिंग करती है और रिंग करने के बाद वो बेल आपका वापस से ऑफ हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ मोनोस्टेबल, मतलब जो एक ही स्टेबल स्टेट में रहता है, जो कि उसकी ऑफ या ऑन स्टेट हो सकती है। तो आपको सिर्फ इतना सा ध्यान से समझना है कि मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की क्या फंक्शनिंग है। इसका मतलब व्हेनेवर इट इज बीइंग प्रोवाइडेड विद सम इनपुट, जब इसको एक इनपुट दिया जाता है उस टाइम पर ये पल्स जनरेट करेगा और ये पल्स आपका आउटपुट है। अब हमारा मोटिव है कि कैसे इस पल्स का पोजीशन को हमें शिफ्ट करना है, हाउ वी आर शिफ्टिंग इट पल्स। मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कैन बी एक्साइटेड, कैन बी ट्रिगर्ड विद द पॉजिटिव और द नेगेटिव पल्स। खास बात ध्यान से ये समझनी है कि जो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरीके की पल्सेस से एक्साइटेड हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो जिस तरीके से हमारा यहाँ पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन प्रोड्यूस हुआ, एक पॉजिटिव पल्स है जिसका कि ये विड्थ है, देन नेगेटिव पल्स इज देयर, जीरो इनपुट इज हियर, देन पॉजिटिव पल्स इज हियर, देन जीरो इज हियर। तो अब हमने जो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर लगा हुआ है, ध्यान से देखिए ये नेगेटिव एज है। नेगेटिव एज का मतलब जब पल्स पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, व्हेन इट इज गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इट इज गेटिंग एक्साइटेड। जब भी आपको नेगेटिव से मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव, हाई से लो पल्स जाती दिखाई देगी, हाई से लो पल्स दिखेगी, उस टाइम पर ये मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर एक्साइटेड हो जाएगा। यानी कि अब आपको क्या चाहिए इसको एक्साइट करने के लिए, इससे आउटपुट लेने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? इसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ की रिक्वायरमेंट है, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। नेगेटिव एज ट्रिगरिंग की रिक्वायरमेंट है। ये नेगेटिव एज ट्रिगरिंग आपको हेल्प करेगा यहाँ पे पल्स पोजीशन के लिए। तो इस डायग्राम में जिसमें पल्स पोजीशन और पल्स विड्थ हमें समझ में आ चुका है। अब पल्स विड्थ का इनपुट, अगर हम जो भी हमारा आउटपुट है उस आउटपुट को अगर हम मोनोस्टेबल में इनपुट देंगे तो क्या होगा? ये पल्स मिला, यहाँ पर इसकी एजिंग हुई, जैसे ये नेगेटिव एज मिला, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर एक्टिवेट हुआ, इसने पल्स दे दी। ये पल्स की विड्थ फिक्स होगी और एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये अपनी स्टेबल स्टेट में आ जाएगा जो कि जीरो स्टेट है, इसीलिए इसको मोनोस्टेबल बोल रहे हैं। जैसे कि आपके घर की डोरबेल, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है, ध्यान से समझना है, कंसंट्रेशन के साथ समझना है। बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। घर में बेल बजाया, थोड़ी देर तक घर का वो ऑटोमेटिक रिंगिंग बेल बजता है, फिर शांत हो जाता है। सेम प्रोसेस है यहाँ पर भी, वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए ऑन होगी, फिर अपनी स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। सिमिलरली फिर जब आपको दोबारा कंपैरिजन मिलता है, एक पल्स फिर आपको मिलती है, और जब ये पल्स अपने नेगेटिव एज ट्रिगरिंग की तरफ जाती है, तब इस नेगेटिव एज ट्रिगरिंग पर आपको फिर से एक पल्स मिलता है और ये पल्स स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि ये जो विड्थ में जो चेंज आएगा वो चेंज ये प्रेजेंट करेगा कि कितने टाइम के बाद आपको ये नेगेटिव एज ट्रिगरिंग मिलेगी, कितने टाइम के बाद अभी आपको नेगेटिव एजिंग मिलेगी।
जब आपको ये नेगेटिव एज मिलेगी उसी वक्त पे आपको पल्स मिल जाएगी। तो सी हियर द पल्स इज बीइंग जनरेटेड फॉर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम बट इट्स पोजीशन इज नॉट फिक्स्ड, क्योंकि इसकी पोजीशन किस पर डिपेंड कर रही है, इसकी पोजीशन इस बात पर डिपेंड करती है कि कितनी देर बाद ये नेगेटिव एज आएगा। So this is what the direct method of generation of the PPM. So by this process, the PWM can be generated by comparison with the sawtooth in the comparator, and with the help of this, using a Murnau stable multivariator, one can generate the PPM. तो दोनों ही चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि PWM से ही हम PPM जनरेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल्स हैं इसके। अब अगर हम आगे की बात करते हैं, इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं, तो हमें पता चलता है कि अगर हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन को ही डिफाइन करें तो वी कैन कैटेगराइज इनटू द 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी, द लीडिंग एज ऑफ द पल्स बीइंग कांस्टेंट, जो लीडिंग एज है पल्स की दैट इज बीइंग कांस्टेंट, द ट्रेलिंग एज वेरीज इन अकॉर्डेंस टू द मैसेज सिग्नल। लीडिंग एज तो आपकी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जो ट्रेलिंग एज होगी वो आपकी रहेगी मैसेज सिग्नल के हिसाब से वेरी करेगी, ये खास बात है। सेकंड, द ट्रेलिंग एज ऑफ द पल्स बीइंग कांस्टेंट, बात वाली पल्स आपको कांस्टेंट रखनी है, ट्रेलिंग एज जो होगी। द लीडिंग एज वेरीज इन अकॉर्डेंस टू द मैसेज सिग्नल, भाई विड्थ को चेंज करना, यू हैव अ पल्स, तो पल्स की ये लीडिंग एज होती है और एक ट्रेलिंग एज होती है। तो जो लीडिंग एज है अगर आपने उसको कांस्टेंट रखा, सिर्फ ट्रेलिंग एज में वेरिएशन आया, या ट्रेलिंग एज को आपने कांस्टेंट रखा, आपकी लीडिंग एज में वेरिएशन आया, या सेंटर ऑफ द पल्स बीइंग कांस्टेंट, द लीडिंग एंड ट्रेलिंग एज वेरीज अकॉर्डिंग टू दिस। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं, बड़ा आसान है समझना। पल्स है, पल्स की ये वाली एज कहलाती है लीडिंग, ये कहलाती है ट्रेलिंग और ये कहता है सेंटर। तो जब आपकी ये वाली एज कांस्टेंट रहती है और बाद की एज आगे या पीछे कम या ज़्यादा, क्योंकि पोजीशन बेसिकली इसकी विड्थ चेंज करनी है ना हमें, तो ये जो विड्थ है वो कम या ज़्यादा किसकी वजह से हो सकती है कि भाई आपके पास में अगर ये सिग्नल है, इस सिग्नल के साथ दूसरा है, तो या तो आप इसको, तो दिस इज द ट्रेलिंग, इसको बदला लीडिंग हो गया, और इनको ना बदल के जो इसका बेसिकली सेंटर है, सेंटर अगर आगे पीछे शिफ्ट होता है अपने हिसाब से वेरी करता है, जिसमें दोनों ही एज इसके ऊपर इफेक्ट आते हैं, देन इट इज कॉल्ड। तो ये तीनों ही एग्जांपल यहाँ पर दिए गए हैं जिसमें आपका ट्रेलिंग एज, लीडिंग एज और हियर यू हैव द वेरिएशन ऑफ द सेंटर। तो ये आपके 3 तरीके होते हैं, आपको ध्यान रखना है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के 3 तरीके से आप इनको प्रोसेस कर सकते हैं। अब इस इनडायरेक्ट मेथड को भी प्रॉपर्ली समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम इनडायरेक्ट मेथड से जनरेट कर सकते हैं। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ए अप्लाइड टू द इनपुट पैम सर्किट, ये आपका ब्लॉक डायग्राम है। इस ब्लॉक डायग्राम में हमारे पास एक एक्सटी है, क्योंकि हमने कहा था इनडायरेक्ट मेथड में हमें क्या चाहिए होता है, पहले वी नीड द पैम जनरेटर, द फर्स्ट वी नीड द पैम जनरेटर टू जनरेट द पीडब्ल्यूएम जनरेट करने के लिए पैम। देन वी हैव अ समर, वी हैड ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट, हमने बात की थी इसके बारे में कि हमें 2 बेसिकली सिग्नल चाहिए, उन दोनों को एड अप करना होगा। और थर्ड इज व्हाट द स्कीमेटिक ट्रिगर, schemic trigger that will give you the PWM output. So here we have the XT. So modulating signal applied to the input of PAM circuit, ST pulse train, आपने ST दिया सिग्नल, pulse train दिया, and PAM signal generator ST is also to the input to the RAM generator, और एक RAM generator को दिया। तो यहाँ पर आपसे क्या बात की है कि XT तो आपका सिग्नल हो गया, इस XT के साथ में जब आप PAM जनरेट कर रहे हो, यहाँ से आपने पल्स जनरेट की अप्लाइड टू द इनपुट ऑफ PAM सर्किट, ST आपकी पल्स ट्रेन हो गई, ये आपने XT लिया, सिग्नल दिया, ST पल्स ट्रेन हो गई जो पैम को भी गई और रैम को भी गई, यहाँ से इसने पैम जनरेट करके B पॉइंट प्रोवाइड किया। ऑल इक्वल स्लोप्स एम्पलीट्यूड एंड जनरेशन, द रैम पल्सेस एडेड टू द पैम पल्सेस टू प्रोड्यूस वेरिंग हाइट सैंपल्स। अब यहाँ पे समर आया और समर के बाद आपने रैम जनरेटर लिया जिसने रैम सिग्नल जनरेट किया। रैम सिग्नल तो आप समझते हैं ना, स्लोप, ऐसे सिग्नल का स्लोप होता है। समर पॉइंट पर आया और समर पॉइंट पे आने के बाद स्कीमिक ट्रिगर में गया एंड देन इट इज गोइंग फाइनली गिविंग यू आउटपुट एज अ PWM। तो यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं, सिंपल सी बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारा एक सिग्नल पैम सिग्नल जनरेट हो रहा है XT के थ्रू, ये जनरेट हुआ। दूसरा हमने यहाँ पर पल्स ली हुई है, ये पल्स पैम को भी जाएगी क्योंकि XT और पैम का होगा। यहाँ पर एक पल्स एम्पलीट्यूड यानी कि एक ऐसी पल्स जनरेट होगी जिसका एम्पलीट्यूड वेरी करेगा। अब इस एम्पलीट्यूड वेरी करने वाली पल्स के साथ आपने सम किया रैम जनरेटर के साथ में। रैम जनरेटर अपने आप में एक ऐसा सिग्नल होता है जो बेसिकली सॉ-टूथ टाइप वेव जनरेट करता है। कंसेप्ट वही है, वेरिंग एम्पलीट्यूड की पल्स यहाँ मिली, यहाँ से रैम जनरेटर मेरा, दोनों का सम अप हुआ और सम अप होने का कंपैरिजन आया। ये जो कंपैरिजन होगा वो कंपैरिजन जाएगा स्कीमिक ट्रिगर के ऊपर। स्कीमिक ट्रिगर अपने आप में ऐसा सर्किट होता है, ध्यान से समझना है इसको। स्कीमिक ट्रिगर अपने आप में वो सर्किट होता है जो बेसिकली वेरिंग एम्पलीट्यूड की और वेरिंग विड्थ की पल्सेस जनरेट करता है। स्कीमिक ट्रिगर का काम क्या है, कितनी देर के लिए सिग्नल को ऑन करना और कितनी देर सिग्नल के लिए ऑफ करना है। कहने का मतलब ये हुआ, स्कीमिक ट्रिगर को आप ऐसे समझ सकते हैं, एक सिंपल सर्किट, जो सर्किट
तो दिए जाने वाला इनपुट का एम्पलीट्यूड ये डिसाइड करेगा कि आउटपुट वेवफॉर्म की विड्थ कितनी होगी। समझ में आया? फिर से हमारा जो बेसिकली स्कीमेटिक ट्रिगर है वो एक इस टाइप का सिग्नल है, इस टाइप का सर्किट है, जिस सर्किट पर जो एक सर्टेन फिक्स विड्थ की आउटपुट जनरेट कर रहा है, लेकिन ये विड्थ इस बात पर डिपेंड करती है कि कितना उसको इनपुट दिया जा रहा है। और ये इनपुट किसकी वजह से वेरी हो रहा है? दिस इनपुट इज वेरिंग बिकॉज ऑफ व्हाट? आउटपुट इज बीइंग टेकन एट द पॉइंट ए। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर PWM आउटपुट जनरेट होता है। अगर हम बात करते हैं इस PWM आउटपुट को जो हमने जनरेट कर लिया, तो इसके डिटेक्शन की बात करेंगे। तो डिटेक्शन के लिए भी वही प्रोसेस यूज किया था। नॉइजी PWM आया, पल्स विड्थ आया, पल्स की विड्थ चेंज हो रही है, स्कीमेटिक ट्रिगर दिया गया। स्कीमेटिक ट्रिगर में दो बेसिकली जगह डिवाइड किया गया इसको, एक रैम्प जनरेटर को दिया गया, एक सिंक्रोनाइजेशन पल्स जनरेटर को दिया गया। रैम्प जनरेटर ने अपना सिग्नल इनपुट क्रिएट किया, यहाँ से इसने अपना इनपुट क्रिएट किया, दोनों एडर पे गए, एक लेवल शिफ्टर आया, रेक्टिफायर से पास ऑन किया, LFF। ये बिल्कुल वैसे ही डिटेक्शन प्रोसेस है जैसे कि डीमॉड्यूलेशन में हम लोग यूज़ करते हैं। स्टेप बाई स्टेप्स अगर इनको देखते हैं तो यहाँ समझ में आता है। सबसे पहले PWM सिग्नल रिसीव किया जाता है टू द स्कीमेटिक ट्रिगर सर्किट टू रिमूव नॉइज। ये बेसिकली इस सर्किट के अंदर से उस नॉइज पार्ट को रिमूव करता है। रीजनरेटेड PWM अप्लाइड टू द रैम्प जनरेटर, रैम्प जनरेटर पे जाता है, एंड सिंक्रोनाइजेशन पल्स। एक रैम्प जनरेटर है और रैम्प जनरेटर का सिंक्रोनाइजेशन पल्स है। हाइट्स ऑफ रैम्प प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ द पल्स। जो भी हमारी रैम्प की हाइट है वो प्रोपोर्शनल होगी किसके? विड्थ ऑफ द पल्स के। क्लियरली समझिएगा, हाइट ऑफ द रैम्प प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ द पल्सेस। पल्स जनरेटर प्रोड्यूसेस रेफरेंस पल्सेस। और पल्स जनरेटर से क्या प्रोड्यूस होगा? रेफरेंस पल्सेस जनरेट होंगी विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड विद द डिले ऑफ द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ आउटपुट। ये जो डिले है वो डिले रेफरेंस पल्स जनरेट करेंगे आउटपुट ऑफ रैम्प जनरेटर। ये सब आपको सीक्वेंस में समझने पड़ेंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सबसे पहले नॉइजी PWM स्कीमेटिक ट्रिगर पे आया, इसने नॉइज को रिमूव किया, PWM क्रिएट किया। यहाँ रैम्प जनरेटर है, सिंक्रोनाइजेशन पल्स जनरेटर है। इनके पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड बेसिकली व्हाट इज द रैम्प इज डूइंग हियर। ये एवरी देखिए, इसी चीज़ को हम लोग बेसिकली वेव फॉर्म्स के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले ये क्लियर हो गया कि स्कीमेटिक ट्रिगर से आपकी नॉइज रिमूव हो गया। नॉइज रिमूव होने के बाद में आपको, अब क्योंकि नॉइज थी उसमें, नॉइज सिग्नल की वजह से, जैसे कि पिछली बार बताया गया था कि आपको क्या मिलता है, स्कीमेटिक ट्रिगर आने वाले इनपुट के रेस्पेक्ट में अपनी पल्स की विड्थ को चेंज करता है। तो इससे आपको एक फ्रेश PWM सिग्नल मिला जिसमें सिर्फ नॉइज पार्ट रिमूव हो गया, क्योंकि प्लस माइनस जो भी एडिशन हुआ था नॉइज की वजह से वो चेंजेस हो गए और एम्पलीट्यूड ने चेंज करके आपको फिक्स एम्पलीट्यूड प्रोवाइड कर दिया, जो कि पहले ही सिंक था ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में। ये सिंक्रोनाइजेशन किया जाता है कि जिस तरीके से आपको वैल्यूज देनी है। लेट्स कम अप हियर। अब इस बार PWM सिग्नल आया, आपका सबसे पहले आपका सिंक्रोनस पल्स है। अगर आप डायग्राम को देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन पल्स जनरेटर और एक आपके पास रैम्प जनरेटर है। इसी चीज़ को हम यहाँ पर क्लियरली मेंशन करते हैं। तो ये जो आपका पल्स है, सिंक्रोनाइजेशन पल्स है, इस पल्स को आपने यहाँ पे देखिए PWM सिग्नल हो गया, सिंक्रोनाइजेशन पल्स हो गया, यहाँ पर आपका रैम्प सिग्नल आ गया। तो आपने क्या किया कि इस सिंक्रोनाइजेशन पल्स और रैम्प सिग्नल को एक साथ इसके ऊपर अप्लाई किया। अप्लाई करने पर क्या होगा? दिस एंड दिस व्हेन इट इज टू बी अप्लाइड देन इट गिव्स एज अ एडर आउटपुट लाइक दैट। तो आपका सिग्नल कुछ इस तरीके का आ जाएगा। फिर आपने इसके लिए एक एडर सर्किट के बाद में फिर आपने एक लेवल शिफ्टर यूज किया। ये लेवल शिफ्टर जो बेसिकली आपका क्लिपिंग का काम कर रहा है ना। ऐड किया आपने इन दोनों सिग्नल को, रैम्प सिग्नल को, जो भी आपको रैम्प मिला, जो सिंक्रोनाइजेशन पल्स मिली, दोनों को ऐड किया। ऐड करने के बाद आपको रिजल्टेंट कुछ इस तरीके का मिला, ये रिजल्टेंट मिला। इस रिजल्टेंट के बाद आपने इसको क्लिप किया, लेवल शिफ्टर के थ्रू क्लिप किया। अब क्लिप करने के बाद में रिमेनिंग सिग्नल आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। दिस पार्ट हैज बीन क्लिप्ड आउट, मतलब ऑल द नेगेटिव पार्ट, मतलब जो भी आपने इसको लेवल शिफ्टर यूज किया था उस लेवल शिफ्टर से नीचे की वैल्यूज रिड्यूस कर दी। कहने का मतलब है, अगर आपको सपोज कीजिए कोई वैल्यूज है डिफरेंट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का लेवल शिफ्टर से मतलब क्या है कि सब में आपने 10 ऐड कर दिया और क्या बना दिया इसको 12, 14, 17, 18 और 10 के लेवल को आपने क्लिप्ड आउट किया। तो आपका वही डिफरेंस आ गया 2, 4, 6, 8, 7, यही क्लिप्ड आउट करने के लिए आपके। अगर आप इसको लो पास फिल्टर से पास आउट करेंगे तो जितने भी हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट थे ऑलरेडी, वो सारे के सारे कंपोनेंट्स आपके यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। एंड फाइनली इसका एनवेलप आप लेते हैं और डिटेक्टर सिग्नल आपका ये होता है। ये दीज आर द हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, ये सब रिमूव हो जाएंगे और आपके पास सिग्नल इस तरीके का आ जाएगा। तो दिस इज व्हाट द बेसिकली प्रोसेस ऑफ PWM डिटेक्शन। इस तरीके से आप PWM का डिटेक्शन कर पाते हैं।
ठीक, नेक्स्ट पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटली डिस्कस अबाउट दैट कि किस तरीके से पल्स का पोजीशन क्रिएट किया जाता है, व्हाट इज द प्रोसेस, सर्किट डायग्राम हमने स्टडी किया हुआ है। ट्रांसमिशन बैंडविड्थ ऑफ पीडब्ल्यू, ये दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अल्टीमेटली हमें ये सारे के सारे सिग्नल्स कहाँ यूज करने हैं, ये सिग्नल यूज करने हैं ट्रांसमिशन पर्पस के लिए। और जब हमें ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो हमें बैंडविड्थ के बारे में जरूर पता होना चाहिए। सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज टू बी टेकन इनटू केयर, both PW and PPM have DC values. Both need a sharp rise time and fall time to preserve the message information. Rise time be very less than, that is TR is very less than, जो भी आपका सैम्पलिंग का टाइम पीरियड है उस सैम्पलिंग से बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए। ट्रांसमिशन बैंडविड्थ इज गेन बाय दिस, बैंडविड्थ हायर देन पैम, और पैम के कंपैरिजन में PW में PPM की जो बैंडविड्थ होगी वो कंपैरेटिवली हाई होगी। ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फाइनली लेट्स वी हैव अ कंपैरिजन अमंग पैम, PW एंड PPM, जिससे कि आपको तीनों के बीच में आने वाला कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट अच्छे से क्लियर हो जाए कि क्या पैम है, क्या PW है, क्या PPM है। सो लेट्स बिगिन। द एम्पलीट्यूड ऑफ पल्स इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड, बैंडविड्थ ऑफ द ट्रांसमिटिंग सिग्नल चैनल डिपेंड्स ऑन द विड्थ ऑफ द पल्स, इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ द ट्रांसमीटर वेरीज, नॉइज इंटरफेरेंस इज हाई, कॉम्प्लेक्स सिस्टम सिमिलर टू AM। तो पैम के बारे में चार बातें क्लियर हैं कि ये जो बेसिकली एम्पलीट्यूड के साथ वेरी करता है, बैंडविड्थ जो होती है वो बैंडविड्थ बेसिकली इसकी कंपैरेटिवली लो होती है क्योंकि हमने बात की थी PW में ज़्यादा है, और डिपेंड किस पे करेगा, कितनी इसकी विड्थ यूज़ कर रहे हैं, बाहर के किसी कंपोनेंट पे डिपेंड नहीं करेगा, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करेगी बैंडविड्थ, किस पे डिपेंड करेगी, जो आपने पल्स यूज़ की है एज अ कैरियर। ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ ट्रांसमीटर वेरीज, ये कम ज़्यादा होती रहती है क्योंकि एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा होगा तो पावर भी कम ज़्यादा होगी। सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है AM की तरह से। विड्थ ऑफ द पल्स इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, पहले से ही बात करते आ रहे हैं कि हमारी इस बार विड्थ जो है वो वेरी करेगी। बैंडविड्थ ऑफ ट्रांसमिशन डिपेंड्स ऑन राइज टाइम ऑफ द पल्स, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पल्स की विड्थ की बात कर रहे हैं, और पल्स की विड्थ किस पे डिपेंड करेगी, राइज टाइम्स, कितना टाइम लेती है ये राइज होने में, तो राइज टाइम एंड द फॉल टाइम, ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली PPM, पल्स पोजीशन के बारे में बात करें। अच्छा, इंस्टेंटेनियस पावर की बात करेंगे, ये भी वेरी करेगी नॉइज इंटरफेरेंस पे, सिंपल इम्प्लीमेंट करने में FM के सिमिलर है। रिलेटिव पोजीशन ऑफ द पल्स इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, इस बार पल्स की पोजीशन वेरी कर रही है। बैंडविड्थ ऑफ द चैनल डिपेंड्स ऑन द राइज टाइम ऑफ द पल्स, इन दोनों में एक कॉमन है पल्स टाइम मॉड्यूलेशन के अंदर। इंस्टेंटेनियस पावर रिमेन्स कांस्टेंट, इस बार पावर जो है वो आपकी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, लेकिन नॉइज इंटरफेरेंस। तो अगर हम पावर की बात करते हैं तो पावर इसमें वेरी करेगी पल्स पोजीशन में, क्योंकि पल्स की विड्थ सेम है, जब विड्थ सेम है तो पावर सेम है, सिर्फ पोजीशन की वजह से। नॉइज इंटरफेरेंस थोड़ा सा इफेक्ट डालेगी। सिमिलर टू इम्प्लीमेंट, सिमिलर टू PM, सिंपल है इम्प्लीमेंट करने में। सो अल्टीमेटली नाउ वी आर कंक्लूडिंग फाइनली हेयर पल्स टाइम मॉड्यूलेशन, पल्स विद मॉड्यूलेशन, और ये सारा का सारा जो पल्स मॉड्यूलेशन स्कीम है हमारी, पैम हो, PWM हो, PPM हो, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी इफेक्टिव एंड quite good as compared to the continuous wave modulation. I hope so you would be really able to understand that. Meanwhile, during the lecture, if any of the part you feel that need more emphasis, more discussion on that point, mention this. Surely I'll develop one video on that. Thank you very much.